हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई थिंक अब मेरी आवाज आ रही है सबको? मुझे चैट में बता दें आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। ओके जी। Okay, genetic control of the hemoglobin is with the alpha chain that is controlled by the four alpha genes. Beta chains are produced by the two gamma beta genes, and the gamma chains are also produced by the four gamma genes. There is usually balance between the rate of alpha and the non-alpha chain production by these genes. Thalassemia is the inherited abnormality in the amount of globin chain production. The chains usually are structurally normal, but their production is reduced. There is no abnormal production of these chains. Major variant of the thalassemia are the two, that is the alpha thalassemia and the beta thalassemia. If their respective genes are disturbed, they leads to the abnormal production, that is reduced production of either alpha or the beta gene. These are the genes and their locus on the chromosome where they are present. Beta globulin chain and the delta are present on the chromosome 11, whereas chromosome 16 are uh, involved in the alpha globin chain production. There are the two locus present, which shows the four gene location for the alpha globin uh, chains production, and whereas for the beta chains there are the two locus on the chromosome 11. It is usually worldwide distributed, but specifically higher incidence are in the Asia and in the Arabic countries. There is distribution parallels to the malaria belt, means the areas which are high prevalent for the malaria also have a high incidence of the thalassemia as well. If you see the inheritance, the thalassemia is an autosomal recessive condition. It means for the disease to appear into the children, both of the parent must have the disease. If the one of the parent is normal, like in this picture, if the mother has a normal globin chains, beta globin chains on the both of them on her chromosomes, but the father has a one defective gene, that is the father is a carrier of the disease, there are the 50% chances that in each pregnancy the child will be healthy and the normal, and the 50% of the chances will be there that the kid is only the carrier of the disease. So if the both of the parents, like in this picture, if the both of the parents are a carrier, there are 25% of the chances, that is shown in the red color, the baby. There are the 25% of the chances that the baby will be born with the disease. There will be 50% chances that the baby will be a carrier, and there will be 25% chances that the baby will be normal. If the baby is having the both the defective gene, as it is inherited from the both of the carrier parents, that still the disease have the different morphological pattern. Like it is shown by the picture beta naught, that is beta 0 beta 0. It is a severe form of the disease in which the person is totally unable to produce the beta globulin chain, and it is a thalassemia major severe variety, and the child will present within the first 6 months of the age due to the severe anemia. Then is the beta plus beta plus. In this condition, the beta genes are defected, but the person is able to produce the to a little amount of the normal globin chain. So the severity of the disease is moderate. Whereas in beta plus plus beta plus plus, it is also called as the thalassemia intermedia. It is the mildest variety of the thalassemia major, in which the patient can produce the globulin chain in a very sufficient amount,
that their hemoglobin usually is kept between the 7 to 8, and the person he still have morphological features like hepatosplenomegaly and the facial features of the thalassemia, but they never go into the anemic crisis like the other persons do, and their level of hemoglobin is usually 5 to 9. These patients are given with hydroxyurea to delay the RBC's destruction. So these are usually not dependent on regular blood transfusions, and they can maintain a sufficient amount of the hemoglobin level into the body, although they are anemic, but they are not that much affected like the thalassemia major, beta naught. The hereditary persistent of fetal hemoglobin, it is the hydroxyurea actually enhances the fetal production, decrease alpha chains. Indian thalassemia, there is again another type varieties present that is called as hemoglobin E and beta naught. And similarly, another sickle cell anemia, hemoglobin with sickle cell anemia and beta naught. These are the actually these phenotypes prevent the severity of the disease. This is a blood picture of the patient with thalassemia, major patient. If you see RBC size is reduced, that is called as microcytosis. And if you see there is a central very large halo is present into the RBCs, which shows that the hemoglobin content is very less. And if you also see there the hemoglobin defected hemoglobin production, with the defected hemoglobin production, these defected beta globin chain, which failed to combine with the alpha chains, are usually clumped into a mass, and that is present into the center of the RBCs. If you see in the slide, many RBCs contain a central rounded structure. These are called as target cells. These are the aggregates of the defected beta genes within the cells. And if you see, these cells are hypochromic. The central halo is increased. In the almost 5 to 7% the carriers are there, and the 10 million almost affected into the world, 16% in the Cyprus, 14% in the Thailand. Almost new cases per year are 9,000, 90,000 to 1 lakh. It contribute like into the normal population में almost पूरी world में 90,000 to 1 lakh तक cases मौजूद होते हैं. 50,000 registered with the Thalassemia Foundation. Life expectancy, if they are not properly treated, is about 10 years. Usually, the symptoms of beta thalassemia depends upon the how much severity the patient is having. Like I have already said, they are phenotypically different. Penetration of the gene or the presentation of the gene is present, like the beta naught, beta plus 1, or beta 2 plus. It is characterized by the severity of anemia. If the usually the patient, the children with beta thalassemia does not appear into the clinics with anemia before the 6 month of age. It is highly unlikely. The reason being, till the 6 month of age, the baby is having the fetal hemoglobin. After 3 months of age, after birth, the baby hemoglobin start converting from the fetal hemoglobin to the adult hemoglobin. And this process takes another 3 months. That is, the first 3 months, the patient is having the baby is having very high level of fetal hemoglobin. And the next 3 months, they have reduced level of the fetal hemoglobin is starting to decrease, and the adult hemoglobin started to appear. And that is why when the adult hemoglobin failed to appear into the circulation, the babies develop the anemia, and they usually present to you almost at 6 months of age. And usual presentation is the paleness into the child. With the if this condition is not treated early, there is the delay in the growth and the development. Bone marrow expansion is there, and extramedullary hematopoiesis leads to the hepatosplenomegaly. And the bone marrow expansion into the flat bones, these are the especially visible on the face, the flat bones of the face, that is the maxillary bone. It start getting flat, and these children have a very flat faces. Their cheekbone is very flat, that is not rounded or the curved, and similarly their nose
the bridge of the nose is getting flatter with the passage of the time. Untreated beta thalassemia major, these patients usually, if it is very severe type of the thalassemia, the child death can occur due to the severe anemia and the heart failure. Management usually include the preventive management like the genetic counseling of the parents is required, and tell them that what are the chances of having the thalassemia child into the family. And similarly, these are also genetic counseling also involve that describing the parents regarding the kid in the next pregnancy as well. So if the parents are having a thalassemia major child, it is understood that the both of the parents are the carrier, and in each pregnancy they have a chance, 25% of the chance of having an affected child. So the parents are described with the different antenatal procedures that can be carried out at the in their next pregnancy to see if the patient is having a thalassemia child or a normal child. And if the patient is having thalassaemic the genetic makeup, these children are then their parents are then offered with the different options through which they can handle this condition. Curative treatment is only one, that is called as bone marrow transplantation, and in which HLA matched sibling usually can donate the bone marrow. And should be a criteria for patient who undergo the bone marrow transplantation. That is, the iron toxicity is not there. Conservative management, which is done usually into the thalassaemic patient, are the blood transfusion, which is done chelation therapy, and the management of its complication. Usually, blood transfusion, the thalassemia major, which are not able to produce not even a single normal beta chain, they only their survival depend upon the blood transfusion. These blood transfusions usually are started at the 6 month of age, and the most important thing is not only the blood transfusion, but how you do the blood transfusion, because mostly these patients are mismanaged by the doctors, that they don't understand the need for the blood transfusion, that at what point they do the blood transfusion. So it is called as the pre-transfusional hemoglobin. The pre-transfusional hemoglobin का मतलब ये है कि वो बच्चा जब अगली दफा आपके पास आए तो इन 9 to 10 milligram gram per deciliter होनी चाहिए. That is called as pre-transfusional hemoglobin. And after getting the blood, it should be 15 gram per deciliter. इसका रीज़न ये है कि जब पेशेंट की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जाता है, तो बॉडी के अंदर सारा जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाता है. और ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है एरिथ्रोपोइटिन की रिलीज को, और एक्स्ट्रा पोइटिक हीमोपोइसिस को इंक्रीज करेगा विद इन द फ्लैट बोन्स, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाएगी, बीटा चेन प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. सो द प्री ट्रांसफ्यूजनल हीमोग्लोबिन शुड बी 9 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर. ठीक है. शादी में कौन सा कॉन्टेक्ट लिस्ट लेकर ऊपर आ जाए और वो मोबाइल की. बेटा आप में से किसका वो ऑन है, माइक ऑन है, किसी का शोर आ रहा है. रैपिड फॉल इन द हीमोग्लोबिन. अच्छा, तो इन पेशेंट्स को आप हीमोग्लोबिन, इसीलिए जब इनकी हीमोग्लोबिन आप इनकी पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर डेसीलीटर करके घर भेजते हैं. इसका रीज़न ये होता है कि हीमोग्लोबिन का जो ब्लड में फॉल है जो पर वीक, वो 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर है. तो यूजुअली आप पेशेंट को 4 वीक के बाद बुलाते हो, 3 to 4 वीक के बाद दोबारा ट्रांसफ्यूज करने के लिए. 15 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 9 और 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए. तो जो फॉल ऑफ हीमोग्लोबिन है वो 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर है. तो आप इसको देख सकते हैं कि 4 वीक के बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब वो पेशेंट आपके पास दोबारा वापस आएगा तो उसका जो हीमोग्लोबिन का लेवल होगा दैट विल बी 9 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर. जिन बच्चों की स्प्लीनेक्टमी कर दी जाती है उनमें जो रेट ऑफ फॉल होता है हीमोग्लोबिन का दैट इज 1 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक.
वो हम बाद में देखते हैं कि क्यों स्प्लीनेक्टमी की ज़रूरत होती है। जब ये बच्चे कुछ अर्सा तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते रहते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने के अपने हैजर्ड्स होते हैं जो हम देखते हैं क्या क्या है, जिसमें सबसे पहली बात आ जाती है एंटीबायोटिक फॉर्मुलेशन। जैसे ही ये पेशेंट ब्लड के लेना शुरू करते हैं तो हर ब्लड जो है उसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, प्लाज्मा प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ, ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पर्सन स्पेसिफिक होती हैं, नॉट इवन अ बेबी और मदर की भी ये प्रोटीन आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। तो जब किसी और पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को लगता है तो उसकी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन एज एन एंटीजन अफेक्ट करती हैं, और उसका इस एंटीजन के इफेक्ट का ये हो सकता है कि वो उनके अंदर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाती है। एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जब कुछ अर्सा तक ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन इसी तरह चलती रहती है तो पेशेंट जो है अगर ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कुछ अर्सा तक किसी तरीके से चलती रहे तो पेशेंट के अंदर उसकी एंटी आरबीसीज एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है वो बड़ी जल्दी इनके अंदर फॉल करेगी। सिमिलरली हेपेटोस्प्लेनोमेगली, अगर इनमें स्प्लीन बहुत बड़ी हो जाती है, तो हेपेटोस्प्लेनोमेगली तो होती है लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम स्प्लेनोमेगली बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब स्प्लेनोमेगली ज़्यादा हो जाएगी तो ये हाइपरस्प्लेनिज्म कॉज करना शुरू कर देगी, यानी इसके अंदर जो भी आरबीसीज गुजरेगा ये उस आरबीसीज को कैप्चर करना शुरू कर देगी। इन्फेक्शंस डिफरेंट किस्म की जा सकती हैं, पेशेंट को हो सकती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ भी मलेरिया हो सकता है, और ये सारी की सारी जो इन्फेक्शन है ये बड़ी रैपिडली उनके आरबीसीज को प्रोडक्शन को कम करेंगे। अगर पेशेंट किसी ऐसी मेडिकेशन के ऊपर है जो मेडिकेशन, कामिल साहब आपका माइक ऑन है, कामिल हामिद आपका मोबाइल ऑन है, आपका कैमरा भी ऑन है, दोनों बंद करना है। कामिल हामिद, थैंक यू। अच्छा, और पुअर क्वालिटी ऑफ ब्लड ये भी डिपेंड करता है कि जो पेशेंट आपके पास है उसका ब्लड, जिससे ब्लड लेके दिया गया है पेशेंट को, उसके ब्लड की क्वालिटी कैसी थी। जी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो हो सकते हैं वो दो तरह के होते हैं। जिन पेशेंट्स को बार बार ट्रांसफ्यूजन लगती है उनमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, इम्यून एंड नॉन इम्यून रिएक्शन। नॉन इम्यून रिएक्शन यूजुअली एंटीबॉडीज इंड्यूस्ड होते हैं, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं उनको इम्यून मीडिएटेड कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, इमीडिएट एंड डिलेड। इमीडिएट के अंदर फेब्राइल इलनेस हो सकती है, पेशेंट को अर्टिकेरियल रैश हो सकता है, हिमोलिटिक इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस हो सकती है सिवियर केसेस में, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है, आईजीए डेफिशिएंसी स्पेशली जिन पेशेंट्स में होती है। डिलेड रिस्पांस जो है वो ऑलोम्यून एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वही जो मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ये एंटीबॉडीज आरबीसी की प्रोडक्शन करती है। ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस भी कर सकती हैं जिस तरह स्प्लीन के अंदर आ जाती है। नॉन इम्यून जो केसेस होते हैं, नॉन इम्यून केसेस के अंदर आपका इमीडिएट इफेक्ट आ सकते हैं। नॉन इम्यून के रिएक्शंस के अंदर, नॉन इम्यून रिएक्शंस के अंदर जो हो सकता है वो ये है कि हाइपोथर्मिया हो सकता है। अगर ठंडा बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज से आपने निकाल के उसको वार्म अप नहीं किया और उसको पेशेंट को ब्लड लगा दिया है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर लेसिक्स नहीं दिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा करती है, एम्बोलिज्म हो सकता है, बाज़ औक़ात हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, स्पेशली उन ब्लड के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म में बड़े अरसे तक पड़े रहते हैं, हाइपरकलीमिया हो सकता है पेशेंट को। इसी तरह सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि ये सिट्रेट और डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोलाइट प्रिजर्व करने के लिए ब्लड को यूज़ किए जाते हैं।
डिलेड टाइप रिएक्शन जो नॉन इम्यून ट्रांसफ्यूजन इंड्यूस्ड हो सकते हैं, उसमें बहुत कॉमन जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, एचआईवी की इन्फेक्शन हो सकती है। ऑल्दो ये इन्फेक्शंस का रेट कम है क्योंकि यूजुअली ब्लड को स्क्रीन किया जाता है, अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते बाज़-औक़ात आपको no test is 100%, so there are still chances that the patient can get hepatitis C virus, hepatitis B virus infection, and similarly the other infections like the different viral infections. If the person who is donating the blood is having any infection, that can be transmitted through the blood transfusion. And the very common another thing infection is the malarial parasite that can go from the donor to the recipient. And the iron overload, that is a very common complication of the repeated blood transfusion. To prevent these alloimmune and non-immune and immune reaction, usually the blood which is usually given to the patient is properly screened to prevent the transmission of hepatitis and cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, and B19 एंड हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ल्यूकोपोर और आरबीसी वाश्ड लाइक दैट इज ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड ब्लड इज गिवन। दैट मीन्स के उनका जो ल्यूकोसाइट होते हैं उनको आरबीसी से टोटली तौर पे अलग कर दिया जाता है, और ये ल्यूकोसाइट पेशेंट्स को नहीं दिए जाते, सिर्फ आरबीसी दिए जाते हैं। तो लेस फेब्राइल रिएक्शन होगा और लेस चांसेस होंगे कि कोई वायरल इन्फेक्शन जो है जो यूजुअली आरबीसीज के साथ डब्ल्यूबीसीज के साथ टैग हुई होती है कि इस पेशेंट को अफेक्ट करे। दूसरा तरीका प्रोटीन को कम करने के लिए जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होते हैं जो आरबीसीज के साथ अटैच हुई होती है, तो उनको वॉश्ड आरबीसीज दिए जाते हैं ताकि एलर्जिक रिएक्शन भी कम हो और आईजीए डेफिशिएंट पेशेंट में जिनमें ज़्यादा चांसेस हैं एलर्जी होने के, इसको कंट्रोल किया जा सकते हैं। जो ट्रांसप्लांट कैंडिडेट होते हैं जिनकी आपने ट्रांसप्लांटेशन कुछ अर्से में करनी होती है, उनको तो स्पेशली इरिडिएटेड ब्लड दिया जाता है ताकि किसी किस्म का भी उसमें एंटीबॉडीज मौजूद ना हो, और या ल्यूकोपुअर जो ब्लड होता है वो दिया जाता है। इसी के साथ जो नई रिकमेंडेशंस हैं जो बाकी चीज़ों के लिए हीमोग्लोबिन के फॉल को कम करने के लिए, वो एक है न्यू आरबीसीज देते हैं। न्यू आरबीसीज मतलब कि जो अभी नए आरबीसीज बने होते हैं वो पेशेंट को दिए जाते हैं। अदरवाइज जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है तो यूजुअली उस पैक के अंदर जो रेड सेल कंसंट्रेट या पैक्ड सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर हर लाइफ का आरबीसीज मौजूद होता है। जिस तरह हमारे अंदर अभी जो ब्लड है उसमें आरबीसी सारे के सारे न्यू आरबीसीज नहीं है, उसमें से कुछ आज डाइंग प्रोसीजर में होंगे, कुछ ओल्ड आरबीसीज होंगे, तो उन पेशेंट्स को स्पेशली न्यू आरबीसीज सिर्फ ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। सेकंड चीज़ ये होती है ऑप्शन कि उनको रेटिकुलोसाइट लेके वो ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं क्योंकि सबसे लंबा लाइफ स्पैन उन रेटिकुलोसाइट का होगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है जो इंटरनेशनली यूज़ की जाती हैं ताकि पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड कम से कम हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस तरह बात हो रही है पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आप पेशेंट को फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम देते हैं तो वो जो पेशेंट है उसमें आयरन ओवरलोड होना शुरू होता है, और इस आयरन ओवरलोड का रीज़न ये होता है कि जो पेशेंट है हमारे जिस्म के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंगली होती है, और आयरन बॉडी से किसी सूरत भी बाहर नहीं आता ब्लीडिंग के अलावा, कि उस पेशेंट का आयरन का कोई चैनल नहीं है बॉडी का कि फीसिस में या यूरिन में आयरन एक्सक्रीट हो सके। तो जितनी भी आयरन बॉडी के अंदर जाएगा वो बॉडी के अंदर ही स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद रहेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता। बड़ी थोड़ी अमाउंट में आयरन लॉस होता है, और वो भी सिर्फ जो सेलुलर टर्नओवर होता है उसके साथ होता है। और जब हम पेशेंट को ब्लड देते हैं तो ईच ml ऑफ ब्लड कंटेन 1.16 मिलीग्राम ऑफ आयरन, और यूजुअली पेशेंट को जो ब्लड दिया जाता है वो 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, 20 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं इन ईच ट्रांसफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ढेर सारा आयरन उनको हर 4 वीक के बाद दिया जा रहा है।
तो यूजुअली अप टू 3 years ऑफ द एज, जब तक पेशेंट को तकरीबन 20 ट्रांसफ्यूजन हो चुकी होती हैं, अगर आप देखें एक 6 month का बच्चा जो है उसको ट्रांसफ्यूजन दी जाए तो तकरीबन तकरीबन 1.5 year और 2 year उसको चाहिए कि उसके अंदर आयरन 1000 से ऊपर पहुंच जाए, कि 20-25 ट्रांसफ्यूजन उसकी पूरी हो जाए। और ये 25 ट्रांसफ्यूजन, जब उसको ट्रांसफ्यूजन पूरी हो जाती हैं तो हम उसका सीरम फेरेटिन लेवल करा के देखते हैं, और अगर ये लेवल 1000 नैनोग्राम से ज़्यादा है तो ये इंडिकेशन बनती है कि इस पेशेंट को आयरन ओवरलोड होना शुरू हो गया है। और अंडरस्टूड होता है हर पेशेंट के लिए जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन में है कि तकरीबन 2 से 3 years ऑफ एज उसका आयरन लेवल कर सीरम फेरेटिन लेवल करा के देखा जाए। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है देखने के लिए आयरन ओवरलोड, वो तो पेशेंट की लीवर बायोप्सी है। अगर उसमें 70% आयरन स्टोर से ज़्यादा हो तो इट मीन्स के वो पेशेंट जो है उसको चिलेशन थेरेपी की ज़रूरत है, उसके अंदर आयरन ओवरलोड होना शुरू हो गया है। 24 आवर यूरिनरी कंटेंट ऑफ आयरन भी आप फॉलो कर सकते हैं। और एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस टेस्ट, जो लिवर कंटेंट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के थ्रू पता करता है कि उसका लेवल ऑफ आयरन क्या है। यूजुअली जो प्रिवेलेंट या जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज किया जाता है वो सीरम फेरेटिन लेवल है। अगर बच्चे का सीरम फेरेटिन लेवल 1000 से 2000 नैनोग्राम तक आता है तो फिर इस पेशेंट को हम डेस्फेरोक्सामिन देते हैं, तकरीबन 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी। 8 to 12 आवर की इन्फ्यूजन दी जाती है, सबकुटेनियसली इसका रूट होता है, फॉर 5 days अ वीक दिया जाता है अनटिल उसका जो लेवल है वो तकरीबन 1000 नैनोग्राम के राउंड अबाउट या उससे कम जब तक नहीं आ जाता। अगर किसी पेशेंट का बहुत हाई ब्लड के अंदर फेरेटिन लेवल है, दैट इज अबव द 5000 10,000 तक आता है इनका, तो फिर हम उसको आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, दैट इज 50 मिलीग्राम पर केजी 24 आवर कंटिन्यूसली आईवी इन्फ्यूजन। स्पेशली ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनमें सीसीएफ हो, आयरन ओवरलोड की वजह से। ये जो आयरन जाकर डिपॉजिट होता है ये सिर्फ लिवर के अंदर नहीं होता, ये आयरन जो है डिपॉजिट होकर बॉडी के सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, जिसमें ये जाके लिवर के अंदर भी डिपॉजिट होगा, स्प्लीन के अंदर भी डिपॉजिट होगा, हार्ट के अंदर डिपॉजिट होगा, ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होगा, और सारे के सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जाके इफेक्ट डालेगा, ये पेनक्रियास के अंदर जाके स्टोर होगा। इसीलिए ये जो पेशेंट हैं कुछ अरसे के बाद अगर इनका चिलेशन थेरेपी नहीं की जाती तो ये पेशेंट जो है वो क्रॉनिक लिवर फेलियर के अंदर जा सकते हैं, क्रॉनिक लिवर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके साथ ये सीसीएफ में जाते हैं। सीसीएफ दो वजह से होता है फिर इन पेशेंट में, एक तो हार्ट फेलियर ड्यू टू द एनीमिया, और दूसरा हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है आयरन ओवरलोड, जिसकी वजह से कार्डियोमेगली होनी शुरू हो जाती है। इनको ब्रेन के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ब्रेन का एक्यूट स्ट्रोक और कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इनके डिपॉजिट होते हैं। उसके अलावा एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी इनमें बड़ी कॉमन है, जिनमें सबसे कॉमन हाइपोथायराइड है। इसके अलावा हाइपोपिट्यूटिज्म हो सकता है जी, ग्रोथ रिटार्डेशन जिसकी वजह से इनको होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके पेनक्रियास के अंदर आयरन ओवरलोड होना शुरू हो जाता है, और इस आयरन लोड होने की वजह से पेनक्रियास स्पेशली ये डायबिटिक हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने बड़े वाइजली इनकी चिलेशन थेरेपी करनी होती है, जिसमें सीरम फेरेटिन को आप ऑब्जर्व करते रहते हो। अगर इनका 1000 2000 या 4000 तक मैक्सिमम आता है तो आप इनको 8 to 12 आवर्स सबकुटेनियस इन्फ्यूजन देते हैं 5 days पर वीक। एंड यूजुअली ये जो चिलेशन है ये नाइट टाइम दी जाती है, कि जब बच्चा रात को सोने लगता है तो 8 से 12 घंटे तो बच्चा सोएगा, तो वो पंप्स मिलते हैं स्पेसिफिक किस्म के चिलेशन के लिए। ये सबकुटेनियस उनको निडल लगा के सबकुटेनियसली एब्डोमेन पे बच्चों को पूरी रात ये इन्फ्यूजन दी जाती है। लेकिन वो पेशेंट जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का हो, या जिनकी परसिस्टेंटली सीरम फेरेटिन हाई रह रही है, सबकुटेनियस से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनको भी आप आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। लेकिन आईवी इन्फ्यूजन काफ़ी हैज़र्डियस हो सकती है, उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम ज़्यादा है।
इसके साथ इन पेशेंट्स को विटामिन सी दी जाता है जो फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में रिड्यूस चेंज कर देता है। 50 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है उन पेशेंट्स को जो लेस देन 10 ईयर्स हैं, 100 मिलीग्राम पर डे जो मोर देन 10 ईयर है। ऑरेंज जूस का अगर आप एडवाइस करेंगे तो एक ऑरेंज में ऑलमोस्ट 75 मिलीग्राम तक विटामिन सी होता है, और अगर ऑरेंज जूस कमर्शियली प्रिपेयर देते हैं तो उस पर 50 मिलीग्राम तक होती है। चिलेशन थेरेपी या डिस्फेरोक्सामिन की जो थेरेपी है उसके साइड इफेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोटॉक्सिसिटी एंड रेटिनोपैथी है, और स्केलेटल डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं। इस वजह से जो पेशेंट स्टिलेशन थेरेपी पे होते हैं यूजुअली रिवर्सिबल होती है, और उनकी ईयर्स का और आईज का तकरीबन हर 3 मंथ्स के बाद टोटल एवेल्युएशन करा के देखी जाती है, और इनके मल्टीपल टाइम एक्सरेज करा के देखते रहते हैं ताकि डिस्प्लास्टिक चेंजेस पता चल सके। डेस्फेरोक्सामिन के बाद अनदर ड्रग दैट इज कॉल्ड डेस्फेरिप्रोम कहते हैं। ये इंडिया में और यूरोप में तकरीबन 2000 में शुरू हुई, इंडिया में 1995 से यूज़ हो रही है। इसकी डोजेस 3 डोजेस दी जाती हैं 75 मिलीग्राम पर केजी पर डे। 65% इफेक्टिव है, एज इफेक्टिव एज डेस्फेरोक्सामिन, लेकिन इसके लेस साइड इफेक्ट हैं। इसलिए उन पेशेंट में जो डेस्फेरोक्सामिन नहीं ले सकते उनमें यूजुअली हम इनको एडवाइस करते हैं। और जो है डेस्फेरोक्सामिन यूजुअली मोर इफेक्टिवली जो लिवर के स्टोर्स होते हैं आयरन के उनको चिलेट करने में हेल्प करती है, वेयर एज डेस्फेरिप्रोम जो है वो आयरन को, जो हार्ट के अंदर आयरन होता है ओवरलोड, उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो यूजुअली उन पेशेंट में जिनमें बहुत हाई लेवल होता है आयरन का, उनको यूजुअली कम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। ये आयरन, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयरन जो है वो बॉडी में से किसी तौर पे भी रिलीज नहीं होता, एक्सक्रीट नहीं होता, वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आयरन को अपने के साथ बाइंड कर लेती हैं। डेस्फेरोक्सामिन और डेस्फेरिप्रोम जो हैं ये आयरन को अपने साथ बाइंड कर लेती हैं और उनको एक्सक्रीट यूरिन में कराती हैं। तो जो डेस्फेरोक्सामिन है वो स्टूल में कराती है, और पेरिप्रोम जो है वो यूरिन में इसको एक्सक्रीट कराती है। तो हम यूरिन के अंदर इसका लेवल भी देख सकते हैं कि कितना एक्सक्रीट हो रहा है। साइड इफेक्ट यूजुअली इसके डेस्फेरोक्सामिन से कम है। न्यूट्रोपीनिया कॉज कर सकती है 2 to 3 वीक के बाद। आप इनका कंप्लीट ब्लड काउंट करा के देख सकते हैं। यूजुअली आर्थराइटिस कर सकती है, लॉन्ग टर्म में हेपेटिक फाइब्रोसिस कर सकती है, और जिंक डेफिशिएंसी कर सकती है। रीज़न उसका क्या ये है जिंक डेफिशिएंसी का कि ये चलेट करती है जिंक को। और जो ओरल दूसरी आती है पाकिस्तान में वो एसुनरा के नाम से आती है, नोवार्टिस की, जो हम यूजुअली पेशेंट को ओरल देते हैं। रोल ऑफ एडॉक्सीयूरिया ये है कि ये फीटल हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से पेशेंट की ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव हो जाती है। तो ये यूजुअली हम जो थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है उसमें देते हैं। अदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती हैं थायराइड, हाइपोथायराइड के साथ, थैलेसीमिया के साथ, उनमें शॉर्ट स्टेचर है। ये जो शॉर्ट स्टेचर होता है ये मल्टीपल चीज़ों की वजह से हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि बच्चा जो है वो बचपन से सिक है और उस तरीके से वो कैलोरीज नहीं ले पा रहा जिस तरह एक नॉर्मल बच्चा लेता है, तो उनमें शॉर्ट स्टेचर ये हो सकता है। इसके साथ ही साथ ये बच्चे जो होते हैं इनके अंदर एंडोक्राइनल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं चिलेशन की अगर नहीं की जाती आयरन ओवरलोड की वजह से। लाइक इनमें बहुत कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म, लिहाजा हर ईयर इनका थायराइड लेवल करा के देखा जाता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपोपिट्यूटिज्म हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मिलके आगे शॉर्ट स्टेचर कॉज करती हैं। इन पेशेंट में डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है अगर इनके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाए। ये पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप कर सकते हैं अगर पेनक्रियास की इन्वॉल्वमेंट हो गई है आयरन ओवरलोड के साथ। कार्डियोमायोपैथी आयरन ओवरलोड के साथ हो सकती है। वैसे ये पेशेंट जो है वो कार्डियोमायोपैथी कार्डियोमेगैलियन में हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकती है। हाइपरस्प्लेनिज्म हो सकती है, स्प्लीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से। हाइपरस्प्लेनिज्म मीन कि स्प्लीन ओवर फंक्शन करना शुरू कर देती है और आरबीसीज और सारे जो तीनों सेल लाइंस हैं उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है,
ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट का हाइपरस्प्लेनिज्म हो जाए तो उनकी एकदम से ब्लड रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। यूजुअली पेशेंट का ये देखने के लिए कि इसका हाइपरस्प्लेनिज्म कितना ज़्यादा हो गया है, या ऑटोम्यून भी होता है और नॉन ऑटोम्यून भी होता है। ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट अगर एक पेशेंट की 200 टू 250 ml पर केजी पर ईयर से ज़्यादा कर जाए, एक साल में तकरीबन इस बच्चे को 12 ट्रांसफ्यूजन चाहिए होती है, और हर ट्रांसफ्यूजन तकरीबन 200 ml पर केजी से। तो इनका टोटल पूरे साल की ट्रांसफ्यूजन्स को निकाला जाता है, देखा जाता है काउंट करके। अगर वो 200 या 250 मिलीलीटर पर केजी पर ईयर से ज़्यादा हो तो इनको स्प्लीनेक्टमी एडवाइस की जाती है। अगर हाइपरस्प्लेनिज्म के कॉज के साइन आने शुरू हो गए, दैट मीन्स कि इनकी ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, बाकी सेल लाइंस डिप्रेस होना शुरू हो जाए। मैसिव स्प्लेनोमेगली है जो मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट पैदा कर रही है पेशेंट के लिए उसके एब्डोमेन के अंदर। यूजुअली पेशेंट जो 5 साल से ज़्यादा होते हैं उन्हीं में से हाइपरस्प्लेनिज्म आता है। स्प्लेनेक्टमी करने का फ़ायदा ये होता है कि जो ऑटोम्यून या अफेक्ट आ रहा होता है जिसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, इन पेशेंट में वो रुक जाती है। ओके जी बच्चों, इसमें कोई क्वेश्चन? चैट बॉक्स ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बच्चों? चलो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन देते हैं। चलो जी, ये पढ़ो बेटा, देखो इसमें क्या करना चाहिए आपके ख्याल में। जी, आपके ख्याल में इस केस में क्या चीज़ है जो एड्रेस करनी चाहिए? कैसे पता चलेगा? क्या करें ऐसे पेशेंट में? जी बच्चों, आप तक आवाज़ आ रही है? आप लोगों से शेयर हो रही है, चैट से नहीं आ रही। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा। जी हाँ,
नहीं बेटा, इफेक्ट जो है वेट पे तो कोई भी नहीं होता। वेट रिडक्शन के लिए कतई अच्छा तरीका नहीं है ब्लड डोनेट करना। ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो स्टडीज बताती हैं वो ये है कि ब्लड डोनेट करने से आपकी बॉडी जो है वो इफेक्ट उस पर अच्छा आता है, क्योंकि हर आप 3 महीने में एक दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इस ब्लड डोनेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो स्टोर्स हैं, जहाँ पे आरबीसीज, अगर एक नॉर्मल पर्सन में तो इतनी नहीं चलेगी ना, तो वो अफेक्टिव होना शुरू हो जाती है, वो उनका एकदम से इफेक्ट अच्छा आना शुरू हो जाता है कि अपनी बॉडी एक तरह से जो डोर्मेंट कंडीशन में गई होती है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है। वेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। बेटा, जब स्प्लीनेक्टमी इसलिए की जाती है क्योंकि जो स्प्लीनेक्टमी होती है, मैंने आपको बताया है कि एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं। हम सारे लोग जो हैं, जो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका अपना एक प्रोटीन का फ्रेमवर्क है, क्योंकि हर किसी के क्रोमोसोम्स जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से अलग है। तो हमारे जेनेटिक मेकअप पे बेस करती है हमारी बॉडी की सारी प्रोटीन्स। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं, जब हम ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक आध दफा का तो खैर है, लेकिन जिस तरह इन बच्चों को कंटिन्यूसली रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो क्या होता है विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ये पेशेंट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेते हैं उन स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो वो आरबीसीज के साथ बाइंड करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये पेशेंट जो है, इनमें एनीमिया होना शुरू हो जाता है। स्प्लीन, जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, तो स्प्लीन होती है जो इन आरबीसीज को बॉडी से खत्म करती है। सो विद द मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, जो स्प्लीन है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। एक तो ये कि उसका साइज भी बढ़ चुका होता है। जैसे ही उसका साइज बढ़ता है, वो सिर्फ आरबीसीज को नहीं, वो डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को भी बॉडी से खत्म करना शुरू कर देती है। दूसरा, ये जो आरबीसी कोड हो जाते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज के कॉम्प्लेक्स के साथ, अगर स्प्लीन ना हो तो ये अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो ये दो रीजंस होते हैं मेजर जिनकी वजह से स्प्लेनेक्टमी करनी पड़ती है, क्योंकि उनका ट्रांसफ्यूजन, उनमें हिमोलिटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ थैलेसीमिया तो होता ही है, उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाला हिमोलिसिस होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन को करने के लिए स्प्लीनेक्टमी की जाती है। बेटा, कैरियर टाइप जो है मारिया, कैरियर टाइप इनकी यही बताई, जैसे मैंने आपको, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। कैरियर टाइपिंग इसमें नहीं की जाती है, इसमें जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। कैरियर टाइपिंग उन कंडीशंस में किया जाता है जहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी मिले, कि क्रोमोसोम का नंबर डिफेक्ट है। इसमें नंबर तो नॉर्मल आएगा, कैरियर टाइपिंग तो इनकी नॉर्मल होगी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह की। जब आप इनका जीन एनालिसिस कराएंगे तो पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है, इनके अंदर डिफेक्टेड जीन, बीटा जीन, ग्लोबुलिन जीन जो है वो डिफेक्टेड मौजूद है। बाकी जहां तक बात है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव है, बोथ पेरेंट कैरियर होंगे। बेटा, इसमें कार्डियोमायोपैथी जो होती है वो होती है, थिकंड हो जाता है हार्ट, डायलेटेड नहीं होता। कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कि जो कार्डियक के मसल्स हैं वो सारे के सारे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो है कार्डियोमायोपैथी, ये हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, क्योंकि सेल्स के अंदर आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। पहले तो इनिशियली यही होता है, लेकिन उसके बाद हार्ट फेलियर के साथ, सीसीएफ के साथ, फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में भी चले जाते हैं। बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? ये मैंने क्वेश्चन दिया था, ये पढ़ के बताएं जरा कि ये आ रहा है नजर सबको, कि ये जो पेशेंट है अगर आपके पास इस तरह का आए तो आप क्या सोचेंगे? जी। अगर एक पेरेंट्स आए कि उनको शक है कि उनके फैमिली के अंदर थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब आप इस पेशेंट को कैसे काउंसल करेंगे? जी। कोई आइडिया? अभी उन्होंने कंसीव भी नहीं किया, अभी उनका बेबी भी नहीं है, तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? सिंपली उसमें जो है ताहिर और नाफिया, नाफिया दो लोग हैं। नाफिया ने थैलेसीमिया के बारे में सुना है कि उसकी फैमिली में है, ताहिर में नहीं है। उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है, कभी किसी में कुछ नहीं हुआ।
कोई आइडिया बेटा, क्या करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? आवाज आ रही है मेरी? जवाब नहीं आ रहा। रीअश्योर करेंगे, गुड। देखो बेटा, हमने पहले ही पढ़ा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अगर एक पर्सन की फैमिली के अंदर थैलेसीमिया है, टू बी ऑन सेफ साइड किया ये जाता है कि दोनों की जेनेटिक टेस्टिंग करके देख ली जाती है कि कहीं दोनों कैरियर तो नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत कॉमन डिजीज है। तो अगर एक की फैमिली हिस्ट्री है, लाइक द गर्ल की, लेकिन बॉय की, अगर ताहिर की फैमिली में इस तरह का कोई मसला नहीं है लेकिन नाफिया का है, तो बेसिकली अगर हम एज्यूम करें, फिलहाल टेस्ट ना भी कराएं, तो नासिर ताहिर इज अ नॉर्मल पर्सन एंड द नाफिया इज अ कैरियर, क्योंकि उसके अंदर तो ये डिजीज नहीं है। सो इन सब बच्चों के, इनके जो सारे बच्चे होंगे उनमें 50% चांसेस होगा कि वो नॉर्मल होंगे, और 50% चांसेस होगा कि वो कैरियर होंगे। तो इनके बच्चों के आगे तो इनकी फैमिली में तो ये डिजीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड इन दोनों की जेनेटिक टेस्टिंग करा ली जाती है, ताहिर की और नाफिया की, ये देखने के लिए कि कहीं दूसरा बंदा भी कैरियर तो नहीं है। अगर दोनों कैरियर हैं तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है, वो आप उनको पूरी डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन यूजुअली अगर अगर ये सिनेरियो हो तो ताहिर की फैमिली नॉर्मल होगी, नाफिया का जो आएगी वो कैरियर आएगा, या वो नॉर्मल होगी, ये दोनों हो सकती है ना, या तो वो कैरियर है या वो नॉर्मल है। तो अगर वो नॉर्मल है तो दे शुड नॉट वरी अबाउट। अगर उनमें से किसी एक के अंदर कैरियर का आ जाता है तो दे कैन हैव द किड्स नॉर्मली, बट उन बच्चों की फिर जेनेटिक टेस्टिंग करके देख ली जाएगी। अगर उनमें से कोई कैरियर है तो फिर उन लोगों को ये डिस्क्राइब किया जाता है कि जब इनकी शादी होगी तो ये देख के किया जाए कि ये फैमिली में, नाफिया की फैमिली में मत शादी करें उन बच्चों की, क्योंकि देन देयर विल बी हाई चांसेस के दो कैरियर आपस में मिल जाएंगे। जी। जी, आगे चलें तो ये वही वाली स्लाइड्स हैं। ये आपको एक स्लाइड मैंने दिखानी थी कि अगर आप इसमें देखें तो 6 मंथ तक जो है वो गैमा चेन्स काफ़ी हाई मिकदार में मौजूद होती हैं, जो बनाती हैं बीटा, अल्फा और बीटा दोनों। अगर आप देखें, अल्फा जो है वो तकरीबन एट अडल्ट लाइफ, ठीक है, उसमें वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों मिला के ये तकरीबन जो 14 वीक है, जहाँ पे जाके बीटा चेन की मैक्सिमम प्रोडक्शन 10 मंथ तक हो चुकी होती है और अडल्ट हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाती है। अब आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। इसमें क्या होगा पेशेंट पेशेंट को? जी बेटा, बताइए इसमें क्या करेंगे? बेटा ये बड़ा टिपिकल सा केस है जो यूजुअली आ जाता है कि कज़न मैरिज है, बाकी बच्चे नॉर्मल हैं, लेकिन एक बच्चा जो है वो वेट गेन भी नहीं कर रहा, और वो जो है इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी एंड फीडिंग डिफिकल्टी जो होती है और साथ पैलर होता है, ये हार्ट फेलियर की निशानी होती है। उसे इरिटेबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर ब्लड का लेवल बहुत थोड़ा है, और इस ब्लड के लेवल के थोड़े होने की वजह से जो बच्चा होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम में होता है। तो ये टिपिकल सिनेरियो है फर्स्ट केस का, कि जिसमें 6 महीने का बच्चा जो है, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ है, वो इरिटेबल होना शुरू हो गया। तो आप इसमें थैलेसीमिया का सारा वर्कअप कराएंगे, अनीमिया का वर्कअप। ओके, थैंक यू बच्चों। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ डिस्क्राइब कर दें, वरना हम ख़त्म करें, गुड बाय कह दें। ओके जी एवरीवन, इंशाल्लाह नेक्स्ट अब वीक में मुलाकात होगी हमारी। ओके।